Good evening friends, this is Sachin Shukla. Welcome back to Team Super Cluster, and today's session I will discuss that the problem based on the Coulomb's law. I have already uploaded my 2 lectures which is on electrostatic, and even we have solved some problems on based on Coulomb's law. Let us proceed करते हैं जिसमें कि हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं इस लेक्चर्स में। तो जो ना देखे हुए हो पहले आप मेरा पहला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ। देन आफ्टर दैट इसमें चलता हूँ। एक्चुअली दिस सेशन शुड बी द लाइव सेशन, बट ड्यू टू द सम प्रॉब्लम्स आई वाज अनेबल टू टेक द लाइव क्लासेस हियर, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग इट दिस वीडियो इन द recorded form. The first question of today's: two equal and like charges placed 3 cm apart in air attract each other with a force of 14 Newton. What will be the magnitude of each charge in microcoulomb? Here you will see that the question is saying that the two equal and like charges placed 3 cm apart in air attract each other. Sorry, here it is given that attract each other, and if the charges are equal and like charges, तो देयर शुड बी रिपेल ईच अदर। अगर चार्जेस हमारे इक्वल हैं और लाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे अट्रैक्ट लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लाइक की जगह आप अनलाइक कर लीजिए, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस होना चाहिए, तभी तो वो अनलाइक चार्जेस होगा तभी अट्रैक्ट करेगा। तो टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस प्लेस 3 cm अपार्ट इन एयर अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन। हियर इट इज आल्सो द मिस्टेक, 14 in the place of 14 we can write is that the 40 Newton. We can say that 40 Newton 14 से भी आ सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आप जब स्क्वायर रूट लोगे तो थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। इजी करने के लिए आगे के क्वेश्चन में थोड़ा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो यहाँ 14 की जगह हम 40 ले लेते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस इन माइक्रो कूलम्स? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसे मैं छोटा कर देता हूँ। आई थिंक दैट आप देख चुके होगे, पढ़ चुके होगे। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस I told you earlier that कि first of all read the question, then write down what the data is given in the question, and then what is asking the question. तब फिर आप लिखिए उसमें क्या पूछ रहा है, फिर आप उसे प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये यूँ, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है two equal and like charges placed 3 cm apart. The force which is acting between the two equal and like charges, that is given that you are 40 Newton. Another is given that the distance between them is 3 cm. We can write it 3 cm in meter like that, 3 into 10 की power minus 2 meter. Simply we convert the centimeter in meter, that's why we have multiplied that 10 की power minus 2. Then next, what will be the magnitude of each charges in microcoulombs? चार्ज का मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है, उनके बीच में क्या रहता है। ओके, वी नोट दैट द कूलम्स फार्मूला, कूलम्स ने जो दिया था फोर्स के लिए फार्मूला ऑलरेडी, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज योर कूलम कांस्टेंट। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हियर चार्जेस आर equal, that's why we can write it like that, Q1 is equal to Q2 is equal to Q. Suppose that the value of charge is Q, so we can write it that the Q. So from here F is equal to, the value of Coulomb constant is that 9 into 10 की power 9, so we can write it that 9 into 10 की power 9, and this is your Q square, and the distance is already given that the 3 centimeter, that is the 3 into 10 की power minus 2, square of this will be the 3 into 10 की power minus 2 whole squares, and we can put the value of F is equal to 40 Newton here, so we will find that the 40 is equal to 9 into 10 की power 9, this is equal to Q square, this is also 3 into 10 की power 4, this we can write it that 3 square is 9 and 10 to power minus is equal to the minus 4. It's okay, we can cancel here, the 9 is 9, and we are finding here from the Q square is equal to that will be the 40 into 9 will become here, and that will transferred here, the 14 into 10 to power minus 13. Then we can calculate from here that Q is equal to 4 into 10 की power minus 12. 40 it is given that, so we can write it that 4 into 10, so 4 into 10 की power minus 12. From here we can say that the Q is equal to 2 into 10 की power minus 6. Square root of 4 into 10 की power minus 12 will be
2 into 10 की power minus 6, and this is given that 10 की power minus 6, so we can say that this is your 2 microcoulomb charge. So this will be the your Q is equal to 2 microcoulomb charge. तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगा आपका 2 माइक्रोकूलम. सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला बेस पे न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट की और वो यहाँ पे निकल गया. ठीक, नाउ हम प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम से अपने जाते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी दैट. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. 2 point charges plus 3 microcoulombs and 8 microcoulomb repel each other with force of 40 Newton. If a charges of minus 5 microcoulombs is added to each of them, then the force between them will become. Here in this question it is saying that the 2 point charges and the value of each charges is given that the value, suppose that charge Q1, suppose we have the two charges like that Q1 and Q2. The Q1's value is given that the plus 3 microcoulombs and the Q2's value is given that the 8 microcoulombs. And surely they are the positive charges, they are like charges, so they will repel each other. And what is the force? The repelling force is here the 40 Newton. They are repelling each other with a force of 40 Newton. That is given here. If a charge of, in second step, that is important, if a charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. In second step, the question is saying that it's okay if the minus 5 microcoulomb charge added in both the charges, mean that in first charges is also adding the minus 5 microcoulomb, in second charges that is the value of plus 8 microcoulomb, also we are adding that minus 5 microcoulomb, then what the force will exist between them? It's a very easy question. मैं इसे छोटा कर रहा हूँ यहाँ से और ये ले गया यहाँ. इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम इसको प्रॉब्लम करते हैं. लेट अस दैट ये दो चार्जेस बोला था, मैंने यहाँ पे बनाया. ये हमारे दो चार्जेस Q1 एंड Q2. पहले चार्ज पे वैल्यू गिवन था प्लस 3 माइक्रोकूलम, सेकेंड पे गिवन था प्लस 8 माइक्रोकूलम. बोथ आर द सिमिलर चार्जेस. श्योर सी बात है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो क्या है, F इक्वल टू 40 न्यूटन, या मैं यूं कहूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 Q2 value is given that 3 into 8 by, and the distance, no, if the distance is not given that, assume that the distance between them is r square. Assume that the distance between them is r. This is distance between, so we can write it here the r square. This is your first equation. Okay, in second step that if you are adding the minus 5 microcoulombs, so plus 3 microcoulombs added by the minus microcoulombs, and that will be your minus 2 microcoulombs. And here the same process is that plus 8 microcoulomb added by the minus 5 microcoulombs, what will be here, the plus 3 microcoulombs. So from here we can say that the new charges will attract each other. After adding the minus 5 microcoulomb each of them, the new value which I am getting, the value of Q1, the value of Q1 becomes that negative and the value of Q2 becomes the positive. From here we can say, suppose that these are the two charges, the force will act between them will be in attractive nature, and the minus 2 microcoulombs, and this is the plus 3 microcoulomb. And suppose that the force which is acting between them is your F dash. Assume that the force which will act between them, it will be your F dash. So we can write it from the Coulomb's law. F dash is equal to the, we can write it like that, F dash is equal to the same procedure 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Here the value of Q1 Q2 is your 1/4 pi epsilon naught minus 2 into 3 by R square. This is your second equation. First equation was this, and this was your second equation. Now divide the second equation by first. So we can write it like that, F dash by F, and after the dividing
this was the 1 by, in first equation was your like 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2. What was the value of q1 q2 in previously? 3 into 8, 3 into 8 by r square divided by 4 pi epsilon minus 2 into 3 by r square. Now here we can calculate r square is all square cancel, so we are getting it here f dash by f is equal to 3 is also cancelled by 3. We are getting that, oh sorry, one mistake we have done. I'm sorry, we are putting the value f dash is in numerator, but we are putting the value of f in numerator. f dash की वैल्यू जो हमारा था वो -2 क्रॉस 3, ये हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, बट मैंने f की वैल्यू यहाँ पे रख दिया था. सो सॉरी. सो यहाँ से ये मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी. तो ये 3 इंटू 8 की जगह यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 इंटू, क्योंकि एफ डैश ऊपर है तो एफ डैश की वैल्यू -2 इंटू 3 था, तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए. -2 इंटू 3 ऊपर होगा, और नीचे जो होगा ये डिनोमिनेटर में होगा वो आपका 3 इंटू 8 होगा, क्योंकि एफ की वैल्यू 3 इंटू 8 गिवन है पहले. ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ पे गिवन था, इसको मैं 8 कर दूँ पॉजिटिव. ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये सारे सॉल्व करने के बाद -2/4 दिस इज इक्वल टू -1/4. f dash by f is equal to -1/4. From here you can say f dash is equal to f minus f by 4. f will be transferred to here, that will be the -f/4, and the value of f is given that the 40 न्यूटन. क्वेश्चन में गिवन था f की वैल्यू, मैंने माना था जो फोर्स पहले उन दोनों को बीच में लग रहा था उसकी वैल्यू गिवन था 40 न्यूटन. सो वी कैन पुट इट हियर, f dash is equal to 40/4, that is equal to f dash is equal to -10 न्यूटन. तो जो नया फोर्स लगेगा, आई थिंक दैट ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली, द फोर्स जो नया फोर्स एफ डैश की वैल्यू होगी वो आपकी होगी -10 न्यूटन. Means that it will be in attractive nature. Also the charge magnitude of charges were unlike charges, they were the dissimilars. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्जेस था. So the value of force ये भी जो आया वो माइनस indicating that the nature of the force is attractive in nature. So the very easy question. Now we will move for next questions. कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो. This is your third question. In third question, द फोर्स, इसे अच्छे से पढ़िएगा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन का, देन आफ्टर दैट आगे बढ़िएगा. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन द एयर इज एफ. द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस if the distance between them is reduced to half and they are situated in medium having dielectric constant force. क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, एक्चुअली ये कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन एयर. कोई टू चार्जेस थे वो एयर में सिचुएटेड थे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है एफ है, इसको हम कैपिटल एफ ले लेते हैं. ठीक है, द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, अगर उन्हीं चार्जों को हम किसी मीडियम में उठा के रख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और उनके बीच का डिस्टेंस क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा नया फोर्स, मतलब उन्हीं चार्जेस को हम उठा के एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन दैट द फोर्स. ये भी गिवन है कि नए मीडियम में रखने के बाद उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन टू द फोर्स एंड डिस्टेंस भी रिड्यूस कर रहा है. डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है. तो पूछ रहा है नया फोर्स क्या होगा. ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने बताया पहले क्वेश्चंस करने से पहले आप देखना होगा क्या क्या गिवन डाटा है. इन दिस क्वेश्चन गिवन डाटा में ये कहा है कि हमारे दो चार्जेस थे, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन एयर एफ. कोई दो चार्जेस थे, लेट अस अज्यूम दैट द चार्जेस वाज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और ये पहले कहां पे थे, एयर में थे, एयर में थे. उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो क्या था, एफ था. गिवन है कि जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो गिवन है एफ है. ठीक, फिर कह रहा है तो फोर्स एफ गिवन है, तो मैं फार्मूला कूलम्स लॉ से ये कह सकता हूं कि Q1 Q2 by R स्क्वायर, और वी कैन राइट इट दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर.
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ दीज चार्जेस अब कहाँ पे ये पुट कर दिए जाते हैं, यही चार्जेस Q1 Q2 एक ऐसे मीडियम में पुट कर दिए जाते हैं जिसकी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या गिवन है, ER इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 4 गिवन है। ठीक है, नया फोर्स पूछ रहा है कि उन बीच में कैसे लेगा। एज्यूम दैट द न्यू फोर्स ये मीडियम में रखा जा रहा है, न्यू फोर्स जो उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा दैट इज योर F डैश। व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू ER। Okay, here the value of ER is dielectric constants. Here's the value of dielectric because the charges are placing in the medium, so we'll here writing that the value ER is your dielectric constants medium. Epsilon ER नहीं सॉरी एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दैट है 4 है, तो Q1 Q2 by R square. So now we can write it like that. Again, one information is also extra information is given in the question is that the distance between them is half. If the distance between them is half, so we will write it like here R/2 square. डिस्टेंस कह रहा है इन दोनों के बीच में, ये चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो R/2, पहले गिवन था R बट अब R/2 हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। सेम प्रोसीजर, इसे मान लीजिएगा सेकंड इक्वेशन, इसे मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, F डैश बाई F इक्वल टू वी विल पुट हियर ऑल द वैल्यू 1/4 पाई और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई R, ये ER। F डैश की वैल्यू में ER भी आएगा और ये R/2 है बेटा, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ER की वैल्यू इज गिवन दैट 4। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं ER की जगह, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट करने से पहले से हम कैंसिल कर दे रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल हियर, Q1 Q2 इज कैंसिल हियर, R स्क्वायर इज आल्सो कैंसिल हियर, and we are getting that F dash by F is equal to ER की वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूं तो ये भी मिल जा रहा है 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू ये 1 हो गया, सॉरी ये यहाँ पे 1, so ये 4/4 is also cancelled. We are getting that F dash is equal to F. We are getting that the F dash is equal to F. So from this point we can say that the new force which will act between them, the value of that force will be the F. मतलब ये वही फोर्स होगा जो उनके बीच में लग रहा था। जब वही चार्ज पार्टिकल एयर में रखे गए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F था, वही चार्ज पार्टिकल को उठा के जब हम एक मीडियम में रखे हैं तो भी वैल्यू F आ रहा है। तो यहां से कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन इज लाइक दैट, यू नो दैट द सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के व्हेन दे आर इन द एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में जब वो पड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा लगता है। उसके बाद उन्हें हम किसी भी मीडियम में उठा के रख देते हैं तो फोर्स ऑफ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी लगेगा वो कम ही लगेगा इन कंपैरिजन टू द एयर इफ द वैल्यू ऑफ द चार्जेस इज द सेम। बट यहाँ पे देख रहे हैं हम दूसरे मीडियम में रख रहे हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, फिर भी वैल्यू F आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल इसलिए है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम, जब वो मीडियम में रखा जा रहा है तो डिस्टेंस उनके बीच का हाफ कर दे रहा है। तो डिस्टेंस हाफ हो गया तो ऑलरेडी R/2 हो गया, तो जब पास में आएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं बीच में उसके, तो इसलिए वो सेम आता है यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to the. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, आप कहोगे कितना मिस्टेक हो रहा है, फिर इसमें वो टाइपिंग मिस्टेक कह रहा है चार्ज Q को प्लेस किया है, कहाँ पे प्लेस किया है? दो चार्जों के बीच में, और जो दो चार्जों को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके सेंटर पे, और फिर पूछ रहा है कि द सिस्टम ऑफ वो चार्जेस जो क्या है इक्विलिब्रियम में है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोटिस कीजिएगा इसे।
कह रहा है द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। आपको ये पता होना चाहिए कब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। कभी थ्री चार्जेस से सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब हम चार्जेस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो मीन्स कहने का मतलब थ्री चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पे जो दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे उनका जब हम सम करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी सिस्टम कहा जाता है कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो चार्ज क्यू प्लेस, अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ एक मिस्टेक है क्योंकि पूछ रहा है वैल्यू चार्ज की, ठीक है, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है किस टर्म में, क्यू के टर्म में कह रहा है ना। तो ये जो होना चाहिए एक्चुअली ये स्मॉल क्यू होना चाहिए और जो टू इक्वल चार्जेस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्यू होना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं बट ऑप्शन हमारा क्यू बाई के फॉर्म में आया हुआ है तो श्योर सी बात है जो ऑलरेडी हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, क्यू होगा ना। तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू होना चाहिए था, वहां पे स्मॉल चार्ज, ठीक है, क्यू। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे हमें डाटा रखना होगा। ठीक, सिंपल, दो चार्जेस थे हमारे जिनकी की मैग्नीट्यूड इज आल्सो गिवन दैट प्लस क्यू, ओके। इनके बीच में जो ये दोनों एक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों एक्ट कर रहे थे। ये पॉइंट मान लीजिए ए पे था, ये बी पे था। एक अनदर चार्ज रखा जाता वो पॉइंट सी मान लीजिए क्यू, और ये सेंटर पे रखा जाता है। किस पे रखा जा रहा है, सेंटर पे रखा जा रहा है। तो इसके बीच की सपोज दैट जो डिस्टेंस होगी वही इसके बीच में, मैं मानता हूँ सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, x ही होगा। CA इक्वल टू CB हो जाएगा क्योंकि बोला सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये बताया कि सपोज दैट ए पे लगने वाला चार्ज, जो ए पे लगने वाला फोर्स होगा किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा और इस चार्ज के द्वारा, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स रहेगा अदर टू चार्जेस से, वो उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। सो सपोज दैट हमारा ये चार्जेस जो F, जो चार्ज ए पे रखा गया है, इस पे फोर्स F, इसके द्वारा जो B चार्जेस प्लस क्यू के द्वारा लगाया जा रहा है वो FB है, ठीक है। और हमारा जो C पे लग रहा है, जो A पे चार्ज C के द्वारा लग रहा है, जो चार्ज C पॉइंट पे रखा गया है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, FC है। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन दैट इस पॉइंट पे अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो FB प्लस FG द फोर्स एक्टेड बाय द फोर्स, जो इसके द्वारा जो चार्ज पार्टिकल B पॉइंट पे रखा गया इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, और जो चार्ज पार्टिकल हमारे जो ये Q है रखा गया है C पे, इसके द्वारा जो लगाया जाए फोर्स, ये सब जो हमारा ये FB था और ये हमारा FC था इसके द्वारा, ठीक। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अब यहां से आपके माइंड में ये हो सकता है सर, हाउ कैन यू से दैट कि FC का डायरेक्शन इधर ही होगा। आप ये कह सकते हो कि सर ये कैसे कह सकते हो आप कि ये FC का डायरेक्शन इधर होगा। ये तो ठीक है, आप कह सकते हो कि जो इसके द्वारा प्लस क्यू के द्वारा जो इस पे चार्ज जो फोर्स लगाया जाएगा, सपोज दैट वो FB था, तो वो तो आप कह सकते हो कि इसका डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे तो वो रिपेल करेंगे। बट इस चार्ज की वैल्यू तो हमें पता नहीं है जो C पे रखा गया है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फिर आप ये कैसे कह दिए कि इसका डायरेक्शन यही होगा, वो इधर भी तो हो सकता है FC का डायरेक्शन इधर भी तो हो सकता है, आप कैसे ये कर सकते हैं। यस, सिस्टम कह रहा है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसके द्वारा इस पे लगाया जाने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी इधर होगा। मैं मान लेता हूं, ओके, लेट अस दैट कि ये चार्ज जो Q की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, तो इधर लगने वाला फोर्स इसके द्वारा ये भी इधर को लग रहा है,
और इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो उनका सम तो कभी जीरो हो नहीं सकता है। तो श्योर सी बात है इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहां से देखा जाए तो हम जो पॉजिटिव वैल्यू है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो आंसर आएगा वो ए और बी में ही होगा। ठीक, तो अब हम वैल्यू निकालते हैं। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम कूलम्स लॉ सेम एफ बी इक्वल टू हम कह सकते हैं के क्यू1 क्यू2 बाई के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक के यहाँ का डिस्टेंस x है और यहाँ तक का x है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। और इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 की वैल्यू गिवन दैट है बोथ आर द कैपिटल Q Q बाई 4x स्क्वायर, ये FB की वैल्यू है। ठीक, अब हम FC की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से FC की भी वैल्यू इसी तरह निकल जाएगी के, बट यहाँ पे वैल्यू जो था चार्जेस की Q और ये वैल्यू जो होगी स्मॉल q, और जो डिस्टेंस है इसके बीच में गिवन दैट है x स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, एफ बी प्लस एफ सी इक्वल टू 0 करते हैं हम, तो ये वैल्यूज हमारी होगी के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट लाइक दैट के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू मैं उधर ले गया, माइनस के क्यू स्क्वायर 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विल बी द कैंसिल, 1q will be the cancel from here, k will be the cancel from here. So from this point we can say that q is equal to minus q by 4. q is equal to minus q by 4 and option A is correct option जो given है. That is, it was a very simple question. ये भी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, बट ये आपका किया जा सकता क्वेश्चन है. ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा सिंपल से बस इतना इसमें रखना था. सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स दैट सिस्टम तभी होगा कि किसी चार्जेस पे लगने वाला, मतलब हर चार्ज जो वहाँ तीनों चार्जेस हैं उन पे लगने वाला, किसी एक चार्ज को कंसीडर कर लो आप, उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, वो रख दो, दैट विल बी द